Hello student and welcome to Bharat Junior Group of School and College, Bharat Group of School and Junior College. This is your geography lecture and today we are going to explain you the lesson chapter 5 secondary economic activities. As in the last chapter we have studied about primary occupations that belongs to fishing, mining, gathering, lumbering and agriculture, etc. So now you can understand that these secondary occupations are directly or indirectly are dependent on the primary occupation about which we have studied in the last lecture. So first of all, on the given page you can see a figure given to you, figure 5.1. So you can see there are many occupations are showing, just like food processing, ornament industry, factories, infrastructure, and steel manufacturing, ships, and the textile industries, etc. So you can easily understand that these are the dependent these are the dependent industries which are dependent on directly or indirectly on primary occupations, which we have understand in our last lecture. So here it is given to you a table 5.1. so you can easily say the table name of the activity A. In figure 5.1 you can see the activity A is food processing. So which raw material requires food, finished products obtained, just jam, pickle, etc. कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका, वेट, ड्यूरेबिलिटी और प्रोक्योरमेंट, कॉस्ट प्राइस. और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट और वेट, ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस. ये जो है इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ख़ास करके स्पेशली इन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस. जो इसका कॉस्ट प्राइस होता है इसको प्रोसेस करने के बाद, इसको फिनिश प्रोडक्ट में डेवलप करने के बाद इसका जो सेलिंग प्राइस है हमें ज़्यादा मिलता है. सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल दीज occupations are secondary occupation and they are dependent on the primary occupations, and after they develop or they are finished or processed, their weight, durability and production and selling price is completely different from the raw material we have obtained from. Okay, now we will go for the geographical explanation. Previous chapter में we have learnt about the primary activities where the product is directly obtained from the nature. जैसे हम लोगों ने पढ़ा माइनिंग में हम लोग अर्थ क्रस्ट से मेटल्स या मिनरल्स लेते हैं. फिशिंग में हम ओशियन से फिशेस या दूसरे मिनरल्स लेते हैं. और जैसे प्लांट्स है, एग्रीकल्चर, गैदरिंग में जो है फ्रूट्स और दूसरी चीज़ें को गैदर किया जाता है. लंबरिंग में जो है बहुत सारे प्लांट्स या ट्रीज़ को कट करके लंबरिंग एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया जाता है. तो ये जो हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है वो कम्प्लीटली जो है वो नेचर पे डिपेंड होती है, यानी हम डायरेक्टली जो चीज़ें लेते हैं वो नेचर से ली जाती है. सम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन थ्रू प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर यूटिलाइज डायरेक्टली. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एक्सेट्रा. और कुछ जो ऐसे होते हैं जिनको उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए या उनको ज़्यादा यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए उन्हें प्रोसेस करना पड़ता है. जैसे फ्रूट्स को प्रोसेस करके जैम, पिकल एक्सेट्रा बनाया जाता है. द प्रोडक्ट्स obtained फ्रॉम द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल. तो जो प्रोडक्ट हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ से ऑब्टेन करते हैं दे आर कॉल्ड रॉ मटेरियल टू प्रोसेस द process for secondary occupation. The products obtained from the primary economic activity are used as raw material in secondary economic activities. Further processing of this material take place and manufactured finished product is prepared to sell it to the consumers. यानी जब इसको रॉ मटेरियल के तौर पर लाया जाता है उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उसको ज़्यादा मोस्ट प्रोसेस करके उस पर उसको मतलब फिनिश प्रोडक्ट में डेवलप करके मार्केट में उसे सेल के लिए लाया जाता है. सेकंड एक्टिविटीज़ जो है
एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। जैसे आपने ऊपर देखा है कि जो मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, इसे जो है प्रोसेस करके उसे ड्यूरेबल बनाया जाता है, उसे शेप दिया जाता है। फिर जो हम देख रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वूलन जो थ्रेड्स है ये नेचुरल प्रोसेस से ऑब्टेन किए जाते हैं, नेचुरल प्राइमरी ऑक्यूपेशन से ऑब्टेन किए जाते हैं, और इन्हें ऑब्टेन करने के बाद इनको पर जो है प्रोसेस करके इन्हें फिनिश प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है और फिर मार्केट प्लेस तक उन्हें लाकर इन्हें बेचा जाता है। मतलब इन्हें कोई डायरेक्टली थ्रेड से यूज़ नहीं करता, लेकिन उन्हें जो है रॉ मटेरियल को एज अ रॉ मटेरियल को जो है प्रोसेस्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। सेकेंडरी एक्टिविटीज देयरफॉर इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसलिए एक्टिविटीज़ में क्या क्या आती है? प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, या हम कंस्ट्रक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं। द प्लेस वेयर कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज इनटू फाइनल प्रोडक्ट टेक प्लेस इज कॉल्ड अ फैक्ट्री। तो हमको यहाँ पर एक वर्ड जो है फैक्ट्री हम बहुत बार इसे यूज़ करते हैं। इस टर्म को एक्सप्लेन किया गया है कि क्या होती है फैक्ट्रीज। जैसे हम जहाँ पर नेचुरल जो है प्राइमरी एक्टिविटीज से जो रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हों, उसे जिस जगह पर प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट में ये जो है कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्साइज किया जाता है, उस जगह को क्या बोला जाता है? फैक्ट्री। तो अब यहाँ पर आपको मैप दिया हुआ है, ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताने वाला मैप है। आप इंडेक्स में देख सकते हैं कि आपको शुगर मिल्स के बारे में बताया हुआ है। अब आपको बोला गया है कि इस मैप को आपको देखना है और समझना है कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में इस फिगर 5.2 में एक फार्मर है जो कि लोकेशन ए पर है। ही हैज़ जस्ट हार्वेस्टेड शुगर केन, और इसको मैप को स्टडी करके आपको बताना है कि अगर वो अपने शुगर केन क्रॉप को प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रीज़ में देना चाहता है तो वो क्या करेगा, मतलब कौन से जगह पर उसे देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को बता दिया जाए कि शुगर केन इज़ अ वेट लॉसिंग प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल। ये जितना अपने फील्ड से दूर होता जाएगा, इसको जितना ज़्यादा टाइम लगेगा फैक्ट्री में जाने के लिए, उतना ज़्यादा इसका वेट लॉस होता जाएगा और उतना ज़्यादा जो है फैक्ट्री को लॉस होगा, यानी उतना शुगर ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 टन शुगर केन है तो उतना शुगर ऑब्टेन नहीं हो पाएगा अगर वो अपने एरिया से दूर हो तो। सेकेंड एग्जांपल आपको दी हुई है फिरोज़ के, जो फिरोज़ के सन ऑफ फिरोज़, जिसने अभी एडवांस कोर्स इन बेकरी में कंप्लीट किया है, बेकरी मैनेजमेंट में, और वो अपनी बेकरी स्टार्ट करना चाहता है। उनके सन फिरोज़ चाहता है कि इसका बेटा जो है एक बेकरी स्टार्ट करे इन देयर विलेज। लेकिन फिरोज़ का कहना है कि ये जो है विच इज़ अराउंड 20 किलोमीटर फ्रॉम देयर विलेज, जो सिटी है वो उनके एरिया से 20 किलोमीटर दूर है, तो वो सही भी है। इसलिए फिरोज़ का बेटा सही है या फिरोज़, या उन दोनों को कहाँ पर अपनी बेकरी को स्टैब्लिश करना चाहिए, गांव में या फिर सिटी में। तो एज़ यू ऑल नो कि ब्रेड जो है ये विलेज लाइफ को सूट नहीं, विलेज लाइफ के लोग इसे कंज्यूम नहीं करते हैं, मोस्टली ये लोग अर्बनाइज लोग इसे यूज़ करते हैं। तो फिरोज़ के बेटे का कहना, यानी द फिरोज़ सन इज़ एब्सोल्युटली राइट दैट ही वांट्स टू establish the factory or his bakery nearby the urban city, or he can establish in the urban fringe, as we have studied in last chapter that urban fringe are away from one night distance at least by any vehicle. So this will be okay or very good for him to get a bakery established nearby it. And the next example is about शांताराम। इसने एक ट्राइबल एरिया को बिलोंग करता है महाराष्ट्र में। ये हनी प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहता है।
उसने गुड हनी कॉम्ब फॉरेस्ट का एक्सेस किया हुआ है और सिटी से 35 किलोमीटर दूर है. ही हैज हिज ओनली लैंड इन द विलेज एंड इज ऑल्सो गेटिंग लैंड इन द सिटी. वेयर शुड ही एस्टेब्लिश द हनी फैक्ट्री? आई थिंक द विलेज इज़ प्रेफरेबल फॉर इट. एज यू ऑल नो दैट हनी जो है मोस्टली डेंस एरियाज़ में तो नहीं रह सकती है. इसके लिए जो है इसके प्रोसेसिंग के लिए, उसके ग्रोथ के लिए ऐसा एरिया होना ज़रूरी है जहाँ पर वो इजीली उसे ऑब्टेन कर सके, हनी कॉम्ब को सेट कर सके और वहाँ से हनी कॉम्ब से हनी ऑब्टेन कर सके. While studying all these examples, you will understand that location of an industry is dependent on many factors. जैसे हम लोगों ने इन एग्जाम्पल्स को पढ़ा था, हम लोगों को समझ में आ रहा है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो, बहुत से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, किसी भी जगह पर स्टेब्लिश करने के लिए. किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए सबसे पहले, किसी भी इंडस्ट्री को या फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल कितना फार है या नियर बाय एरिया में है और वो ट्रांसपोर्टेड किया जा सकता है या नहीं, और ट्रांसपोर्टेशन में इसकी कितनी वैल्यू बढ़ती या कम होती है. वी नो दैट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द primary activities. The characteristic of raw material and also the finished product after the location of industry. For example, sugar industries needs sugarcane. Sugarcane loses weight amount of sugar after harvesting as time after harvest increase. These after their effective use for producing sugar. Thus, sugarcane needs to be sent to nearby factories as soon as possible. जैसे मैंने आपको शामराव के एग्जाम्पल में बताया कि उसने हार्वेस्ट तो किया है, लेकिन वो चाहता है कि उसकी जो है वो सोच रहा है कि वो अपने शुगर को प्रोसेस होने के लिए कहाँ, किस जगह पर भेजे. तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा वो फैक्ट्री जो उसके लिए नज़दीक हो, क्योंकि शुगर जो है एक वेट लॉसिंग प्रोडक्ट है. ऐसा प्रोडक्ट है जो शुगर केन को जब हार्वेस्ट किया जाता है तो उसके फ़ौरन बाद उसे प्रोसेस किया जाना ज़रूरी होता है. Thus, sugarcane needs to be sent to nearby factories as soon as possible. Sugar industries are therefore located near the production of raw material. On the other hand, in bakery industries, the final output, say cake, has higher weight than raw material. These will be costlier to transport as transport costs will increase with weight. Therefore, bakery industries are located near the मार्केट. लेट अस लुक एट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. अब जैसे हम लोगों ने फिरोज़ के बेटे का एग्जांपल लिया था कि वो फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फैक्ट्री वहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर उसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े, यानी मार्केट एरिया के नज़दीक. तो वो सिटी को प्रेफर कर सकता है या अर्बन फ्रिंज में कर सकता है. जो फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं वो है फिज़िकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, अदर फैक्टर्स एक्सेट्रा. अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं फिज़िकल फैक्टर के बारे में. तो फिज़िकल फैक्टर में सबसे पहले आता है क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वाटर एंड पावर सप्लाई, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, साइट और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. तो सबसे पहले हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. हार्श क्लाइमेट जो है सूटेबल नहीं होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और कोई ऐसी इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं हो सकती जहाँ पर हॉट और ह्यूमिड, ड्राई या बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट हो. यानी अगर फॉर एग्जांपल द एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया और एक्सट्रीम नॉर्थ इंडियन हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज देयर. यानी नॉर्थ इंडिया का और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो क्लाइमेट है ये जो है हैंडल करता है डेवलपमेंट को, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को. चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर एग्जांपल में ऑल्सो अफेक्ट इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल क्रोनिक ड्राउट्स, जहाँ पर लगातार ड्राउट्स होते रहते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द मॉडरेट क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल एरिया इज़ क्वाइट कंजेनियल टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. इनके अपोजिट में देखा जाए तो जैसे हम लोगों ने बताया कि नॉर्थ इंडियन या नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो क्लाइमेट है इज़ नॉट सूटेबल फॉर इंडस्ट्रीज, लेकिन इन द कॉन्ट्रास्ट टू दिस द मेडिटेरियन मॉडरेट क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल एरिया ये बहुत सूटेबल होता है, प्रीफरेबल होता है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. अर्लियर व्हेन आर्टिफिशियल थ्रेड्स एंड मैकेनाइजेशन वर नॉट यूज फॉर मेकिंग टेक्सटाइल, कॉटन थ्रेड जो है इसको बनाने के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती थी. बिकॉज जो है ड्राई क्लाइमेट में ये जो थ्रेड होते हैं वो टूट जाते हैं.
लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता था ड्राई क्लाइमेट में किसी भी तरीके से इसको, इस इंडस्ट्री को बेस करना। लेकिन अब चूँकि मेजॉरिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर कंसंट्रेटेड इन कोस्टल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, अब यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफायर जो है यूज़ किया जाता है ड्राई एरियाज़ में, ताकि ये जो है थ्रेड टूटे नहीं और इंडस्ट्री में जो है डेवलपमेंट का काम चलते रहे, प्रोसेसिंग का काम चलते रहे, बट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन इसकी वजह से प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि अब मशीनरी लगाएंगे तो मशीनरी को मेंटेन करने के लिए जो खर्च होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो तो उन लोगों को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। लेकिन इस तरह से उन लोगों ने इस प्रॉब्लम को तो, एक प्रॉब्लम को तो ओवरकम किया। ये उन लोगों ने जो है ड्राई क्लाइमेट के एरिया में भी अपने फैक्ट्रीज़ को डेवलप कर लिया, लेकिन दूसरी जो है प्रॉब्लम वहाँ पर राइज हो रही है, और वो है कि उन्हें जो है एक्सपेंडिचर बढ़ाने की वजह से इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाना पड़ रहा है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे हम लोगों ने ऊपर 2-3 एग्जाम्पल्स में देखा है कि रॉ मटेरियल जो है कभी कभी जो है पेरिशेबल होता है, जो बहुत जल्द ख़राब हो जाता है, और कुछ रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो वेट लॉस करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा शुगर केन के बारे में पढ़ा, और जैसे हम दूसरे फ्रूट्स वगैरह के बारे में भी समझ सकते हैं कि अगर फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा देर तक के ट्रांसपोर्ट किया जाए तो हो सकता है कि वो ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसे पेरिशेबल फ्रूट्स वगैरह को जो है, रॉ मटेरियल को जो है इंडस्ट्रीज़ के नज़दीक, इंडस्ट्रीज़ ऐसी जो है पेरिशेबल फ्रूट्स वगैरह के आसपास में डेवलप होती है। अब हम पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में। तो जैसे आप लोगों को बताया जाए, मालूम है कि जो रॉ मटेरियल है मोस्टली रेन फार्म्स, माइंस, फॉरेस्ट, फिशरीज एट्सेट्रा से आता है, और इनकी लोकेशन जो है इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड, इनकी लोकेशन की जो है इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन perishable, heavy, bulky and weight losing raw material such as sugar cane are located near the raw material. The jute mills, sugar milk are mostly concentrated close to the sources of raw material for this very reason. Similarly, industries processing local fruits are found near Mahabaleshwar and Nagpur. Perishable fruits need to be processed soon and hence they are located near the cities. तो अब अभी आप लोगों ने समझ लिया कि कुछ जो होते हैं रॉ मटेरियल बुल्की होते हैं, कुछ जो है वेट लॉसिंग होते हैं, कुछ जो है पेरिशेबल होते हैं। तो पेरिशेबल फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है इंडस्ट्रीज़ को जो है ऐसे जगह पर सेटअप किया जाता है जहाँ से रॉ मटेरियल को लाना इजी हो और वो मतलब जल्दी से उन्हें प्रोसेस करना शुरू किया जा सके। अब वाटर और पावर सप्लाई, तो सबसे ज़्यादा जो है वाटर प्लेज द डोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि वाटर जो है हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। जैसे आप समझ सकते हो कि कूलिंग, स्मेल्टिंग, वॉशिंग एट्सेट्रा। Thus, such industries are located near the banks. जैसे almost all the industries require plenty of water for various processes. Such industries are located near the banks of river, near lake. Coals, oil, or electricity are indispensable energy resources in running any type of industry. Coal is heavy and bulky. The industries dependent on coal as energy resource are located near the mining area. जहाँ पर इसकी माइनिंग होती है इसको वहीं पर सेटअप किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल कैन बी सप्लाइड थ्रू वायर्स एंड पाइपलाइन इजीली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड इंडस्ट्री डिपेंडेंट ऑन इट नीड नॉट टू बी लोकेटेड नियर देयर सोर्स रीजन। यानी इन्हें अगर इजीली जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है तो फिर इनके इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर होना इतना ज़रूरी नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो है लेबर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर। हर कंपनी जो है किसी एक अकेले से तो कोई इंडस्ट्री नहीं चलती है। अब इसके लिए जो ज़रूरी होते हैं वो होते हैं लेबर, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबर। वन होते हैं स्किल्ड लेबर एंड देयर आर अनस्किल्ड लेबर। तो ये दोनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे एरियाज़ में जो है इंडस्ट्रीज डेवलप होती है जहाँ पर लोगों को इजीली जो है, जहाँ पर लेबर इजीली मिल जाते हैं, जो अवेलेबल हो जाए और कम पेमेंट पर ज़्यादा काम करें। जैसे इंडस्ट्रीज ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिक्वायर सेमी स्किल्ड लेबर्स
whereas food processing industries, ornament making industry require skilled labor. Industries require skilled labors. In spite of increasing mechanization, some industries still require large number of workers. Hence, we find labor colonies are found near large industries. तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो है लार्ज इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, तो लेबर जो है कॉलोनीज जो है इंडस्ट्रीज़ के आसपास होती है. अब ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है. एज़ यू नो कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है रॉ मटेरियल को ऑन टाइम इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए. वेदर फार और वेदर नियर, इट नीड्स टू बी reach at proper time. So it depends on transportation. So there are 3 types of transportation as we know. एक ट्रेन होता है, रोड होता है, और थर्ड होता है 4 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन: ट्रेन, रोड्स, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन. सो जो है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कैरी गुड इज नॉन एज इकोनॉमिक डिस्टेंस. लो कॉस्ट transportation, cost of transportation or time required to carry good is known as economic distance. Low cost of transportation is the key factor in the location of industry. Cost of transportation will be more for heavy, bulky, perishable raw materials and for longer distances. For example, transportation of coal. On the other hand, lightweight and non-perishable items can be brought from far distances through cheaper transportation like waterways. Such industries may be located near the ports or rivers, for example cotton, textile और pulpwood. अब हम लोगों को क्या समझ में आया यहाँ पर कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इसे समझना हमें ज़रूरी है कि जब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है तो प्रोडक्शन का कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है. तो कुछ जो होते हैं प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें इजीली लाया जा सकता है, इन्हें उनके लिए जो है ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता है. तो पहले आपको बताया जिन गुड्स को जिन प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कैरी करने के लिए ज़्यादा जो है कॉस्ट लगता है तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक डिस्टेंस. और जहाँ पर लो कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है तो उसे की फैक्टर बोला जाता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो हैवी और बुल्की पेरिशेबल और पेरिशेबल रॉ मटेरियल्स के लिए ज़्यादा होता है और लॉन्गर डिस्टेंस के लिए भी ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम कोल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जबकि अगर हम इसके मुकाबले में अदर हैंड हम लोग लाइट वेट और नॉन पेरिशेबल आइटम्स का जो है डिस्टेंस फार डिस्टेंस से ट्रांसपोर्टेशन करते तो वो ज़्यादा चीपर होता है. इसका एग्जांपल है कि हम वाटर वेसेस को ला सकते हैं. ऐसी इंडस्ट्रीज जो होती है जो वाटर वेसेस ट्रांसपोर्टेशन करती है वो मे बी लोकेटेड नियर द पोर्ट्स और रिवर्स, फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल. आप साइट और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हम पढ़ेंगे. साइट और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. अब जब हमें इंडस्ट्रीज़ डेवलप करना है, फैक्ट्रीज़ को डेवलप करना है, उन्हें बनाना है तो उसके लिए तो लैंड की ज़रूरत होगी और साइट्स की ज़रूरत होगी. तो साइट जो है इंडस्ट्री डेवलपमेंट का एक कंसिडरेबल और सिग्निफिकेंस जो है रिक्वायरमेंट है. और लोकेशन जो है जनरली फ्लैट होनी चाहिए और जहाँ पर एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, वाटर फैसिलिटीज़ हो, लार्ज एरिया हो ताकि वहाँ पर फैक्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड किया जा सके. और अर्लियर इंडस्ट्रीज़ जो है कॉन्सेंट्रेट होती थी नियर अर्बन एरियाज, बट नाउ बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड हाई प्राइसेस अब ये क्या करते हैं ज़्यादा करके इंडस्ट्रीज़ को रूरल एरियाज में डेवलप करते हैं. इसका एग्जाम्पल है लॉर्ड परशुराम इंडस्ट्रीज एरिया इन चिपलून एंड चाकन इन पुणे. तो जैसे हम लोगों ने अभी क्या क्या समझा है, हम लोगों ने देखा कि टू डेवलप्ड फिजिकल फैक्टर जो है क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड, साइट एट्सेट्रा, ये सब जो है किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक के बाय.